So we are not left with anything much in this book now. So let me just see. Why are people not joining us yet? That's been one of my mantras, focus and simplicity. Simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple, but it's worth it. Okay. So let's start with our this thing chapter today, which is the concluding chapter. So who would like to read it today? Anybody who wants to read? Chetna ji, I will read. Yeah. Susanna? Yes, please do. But I'm not on here. Okay. Yeah, please read. Beginning of the day. No, it starts from beginning of the day. Wait. No. Let me just start the new chapter. This is yesterday's chapter, no? Yeah. So this is your magical future. Okay. So this is the concluding chapter. And in this, there is this picture where there is a telescope. Okay. Telescope may what happens? We are looking at the things which are very, 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 very far away from us. But when we look at those things through this telescope, they look closer to us. So this is supposed to be the telescope of magic and gratitude, through which the things which seem to be out of reach for us, we can bring them closer to us. We can, invite them into our lives. We can, receive them in our lives just by being in the regular and continuous practice of gratitude. So this is what the picture means here. And now, yeah, please read. Yeah. Yeah. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more flows to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Gaitner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. Yeah. The ideal way. But, let me just do this, huh? Yeah. So you are the builder of your life. This is what we have been understanding. The basic idea of doing this practice of the gratitude is also because we have understood that we are the builders of our life. We are the creators of our life. Whatever we think, whatever our feelings and the vibrations of our emotions is, at whichever level we are vibrating, we are attracting those similar circumstances in our life. That is how we are the creators of our life and we create. So if we want goods to be, received in our life, to be attracting goods and the best, whatever we desire in our life. Of course, nobody wants anything wrong to be happening in their lives. Everybody wants goods to be happening and all the goods coming into, in their lives. For that, we need to, change our vibrations. And for doing that, changing of vibrations, when we realize we are not, our emotional state is not most of the times in the desired zone, and most of the times we actually gravitate towards the negativity. And then when we realize, because of that state of our mind and because of that state of our emotional state, that we are attracting the adverse situations and circumstances in our lives. तो उसी को चेंज करने के लिए हम लोगों को ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, जो कि जिसने हमको बहुत हेल्प किया है. Just past 1 month, everybody who is practicing this past 1 month, all the new ones and a few old ones who are there in this group, तो उनको भी बहुत टाइम से पता है कि ये ऐसे एक्चुअली काम करती है ये चीज.
तो उसी की वजह से हम लोगों ने ये वाला करना शुरू किया, और उसकी वजह से हम लोगों के इमोशनल स्टेट में बहुत डिफरेंस आया है, बहुत फर्क आया है। और जैसे जैसे हमारे इमोशनल स्टेट में फर्क आता जा रहा है, वैसे वैसे हम वैसी वैसी चीजें अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, अच्छाइयाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस भी थे उन चैलेंजेस को भी ट्रांसफॉर्म करके हम अच्छाइयों में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करते जा रहे हैं. So you have now laid a foundation by practicing this gratitude regularly over the past 1 month. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. तो जितना जितना हम लोगों ने ये किया, अब हम लोगों ने इतने दिन जो प्रैक्टिस किया, अभी हम लोगों का ये बेस बना है, बेस हमारा ये था कि नाउ अब हमारा पूरा ध्यान ऐसे हो गया कि हर चीज में हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड गोइंग इन आवर लाइफ, बैड गोइंग इन आवर लाइफ, नॉट सो गुड हैपनिंग इन आवर लाइफ, and things which we have been ignoring and overlooking, which we never thought, never gave a second thought also. ऐसी ऐसी चीजों के लिए हम लोगों को लगा कि हाँ, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, करने से ही, उतना ही करने से तब हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे. तो ये अभी तक हम लोगों ने जो इतने दिन सीखा है, दैट इज ओनली बीन द बेस. और बेस हमारा स्ट्रांग जब तक नहीं होगा तो उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बन सकती है. तो हमने अपना बेस बहुत स्ट्रांग बना लिया है ओवर दिस पास्ट 28 डेज. तो अब नाउ वी आर, अब जितनी जितनी हम रेगुलर यही प्रैक्टिसेस को एक बार 28 डेज या 1 मंथ हमने कर लिया, उसके बाद अब हम सोचें कि बस हमारा काम हो गया, अब हमको तो समझ में आ गया ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड की पावर क्या होती है, तो उसके बाद तो अब हमारा आई एम सॉर्टेड, आई एम इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड. नो, जब तक हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करते नहीं रहेंगे, जो 28 डेज हम लोगों ने की है, इनको अगर हम रेगुलरली करते नहीं रहेंगे और हमको ऐसे लगा कि अभी तो हमारे बीइंग में आ गया, अभी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा. इन प्रैक्टिसेस को रेगुलर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तब जाके इस बिल्डिंग, ये जो हमने जो बेस बनाया है, इसके ऊपर वन बाय वन बाय वन बाय वन हमारी लाइफ के ब्यूटीफुल फ्लोर्स को हम एड ऑन करते जाएंगे. So your life will climb higher and higher until you touch the stars, but only with the regular and consistent practice of gratitude. उसके बिना हमारा बीइंग ग्रेटिट्यूड वाला नहीं बनेगा. अभी भी हमने जो ये किया है, अभी हमारा बहुत थोड़ा बहुत हमारे बीइंग में इसका आना शुरू हुआ है. हम ग्रेटिट्यूड थोड़ा बहुत ही अभी करना सीखे, हम उतना अभी नहीं करना. जब मैं 4 साल से कर रही हूँ, उसके बाद भी खाना खाने वक्त कई बार मैं भूल जाती हूँ कि उसमें मैं ना मैजिक डस्ट या मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा उसको डस्ट करूँ उसको और खाऊं. हाँ, हड़बड़ वाला कभी थैंक यू कर दिया, कभी पानी पीते टाइम कभी याद रहता है, कभी नहीं याद रहता है, या किसी को आते जाते किसी को ऐसे डिस्ट्रेस में देख रहे हैं तो मैजिक डस्ट कर देना या मैजिक वॉन्ड कर देना. वो सब मुझे अभी भी 100% नहीं याद रहता, कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता है. तो 100% जब तक वो सब नहीं हो जाएगा कि मोमेंट हमको ऐसी कोई भी चीज दिखे, मेरे अंदर से वो ग्रेटिट्यूड निकले, मेरे अंदर से वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग निकले, तब तक हमको इन प्रैक्टिसेस को बार बार करना पड़ेगा. और तब तक, जब तक हम ये सब नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारा वो बीइंग नहीं बनेगा, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, तब तक हम कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे. So your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it is infinite. तो gratitude is infinite, just as the stars. Number of stars हम लोग कभी उनको फैथम नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, कितना बड़ा क्रिएशन है. उतना ही हम एंडलेसली अपनी लाइफ को मैजिकल और मिरेक्युलस बना सकते हैं बाय द प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड. बट यही जो प्रैक्टिसेस जो हमको रोंडा ने सिखाई हैं, इनको हमें बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा. सपोजिंग किसी रिलेशनशिप एरिया में, अभी जैसे शी इज गोइंग टू टीच अस कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें किस तरह से कर सकते हैं. तो लेट्स रीड ऑल दैट फर्स्ट. नाउ Johannes Gatner says, to speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. हम कैसे जो नॉर्मली हम लोग जैसे बोलते हैं ना, किसी ने हमको कुछ कर दिया या क्या किया तो हम नॉर्मल थैंक यू बोल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड courtesy. And it sounds pleasant also. But enact gratitude is generous. अब enact gratitude करना क्या हुआ कि हमारा हर एक्शन ही ऐसा हो कि हमको हमारे एक्शन से ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग सबको, सामने वाले को दिखने लगे कि हाँ, ये दिस इंसान इज बिकमिंग ग्रेटफुल, इसकी बीइंग से दिखाई पड़ रहा है. बट टू लिव ग्रेटिट्यूड इज टू टच हेवन. लिव मतलब हमारा टोटल पार्ट ऑफ हमारा बीइंग बन जाए, हमारे मतलब हमारी आंखों से, हमारी लैंग्वेज से, हमारे बोलने से, हमारे काम करने से, हर तरह से
सामने वाले को दिखे कि हाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन. ट्रस्ट मी, दिस टाइम व्हेन आई वाज एट रिट्रीट, काफी लोगों ने मुझे रोक के बोला, मैम यू आर सो नाइस, यू आर सो गुड. आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं जस्ट खाली ये बताना चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है उतना कैसे लोग इस चीज को समझ पाते हैं विदाउट माई हैविंग टू गो. अब मैं ग्रेटिट्यूड का जो जैसे एज आई सेड ना कि आई वाज रिक्वेस्टेड बाय श्रेयांश कि आप उसके ऊपर एक ग्रेटिट्यूड के ऊपर करो, कंडक्ट करो सेशन. तो मैं वो करती तो शायद उसके बाद इम्पैक्ट और ज्यादा होता, बट उसके बावजूद कि अभी वो हुआ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, बट उसके बावजूद लोगों को दिख रहा है कुछ. फोटोग्राफर जो वहां पे सारा दिन वो लोग घूमते हैं, तीन चार लोगों की टीम होती है. वो लोग हर मोमेंट हम लोगों के साथ साथ रहते हैं. हम लोग किसी भी एरिया में कोई भी एक्टिविटीज हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे स्विमिंग पूल की हो, चाहे तपस्थली में जाके मेडिटेशन करना हो, चाहे ब्रेथ वर्क करना हो, वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं. तो दे स्टॉप्ड मी वन डे, दैट वाज द लास्ट डे, कि मैम वी आर सो हैप्पी टू सी यू. और एक तो वहां पे मैंने गाने वाने गाए थे तो दे वर वेरी हैप्पी कि आप बहुत अच्छा गाते हो, उसके लिए दे वर प्रेजिंग मी. एंड देन दे सेड कि आई सेड आई एम सो ग्रेटफुल, आप यू आर अप्रिशिएटिंग मी. तो बोले कि नहीं, आप हर चीज में थैंक यू भी बोलते हो, ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आप हर चीज में बार बार हम लोगों को थैंक यू बोलते हो. सो दैट हैज बिकम नाउ हैबिट, कि किसी को भी कुछ भी करना तो वो आंखों में ही आ जाता है कि किसी को भी इस तरह से नहीं देखना. और कई इंस्टेंसेस ऐसे आए, सिंस आई एम मॉडरेटिंग द सेशन ओवर देन आई एम आल्सो एंकरिंग, एंड स्पेशली व्हेन श्रेयांश की तबीयत खराब हो गई एक दिन पहले, तो आई वाज बीइंग अ लिटिल स्ट्रिक्ट कि लोगों को कि अब आप उनके आसपास भीड़ नहीं लगाएंगे. वो बेचारे को आधा घंटा जो रेस्ट कर बैठ के कुछ खा पी ले, उतना में भी लोग आके बगल में बैठ जाते हैं, उनके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते. डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 2 डेडिकेटेड सेशंस, कम से कम 1.5 घंटे के, 3 घंटा उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स को उन्होंने दिया, उसके बावजूद भी लोगों के क्वेश्चंस नहीं खत्म होते. एंड ऑफ कोर्स श्रेयांश इज सच अ पर्सनैलिटी कि कोई भी उनके पास 1 मिनट या आधा मिनट जाके बैठने को अपने 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 आप को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता है. सो ये फीलिंग मेरे अंदर भी होती, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक के अंदर ये फीलिंग आती होती कि जो भी जाए कि आधा मिनट या 1 मिनट भी उसके साथ बैठने का मिले, उससे बात करने का मिले, तो आई फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी. तो वो फीलिंग मैं किसी की क्यों रोकूं. सबको, मेरे को अगर वैसा लगता है कि मैं भी शांत से बैठ के बात करूं, तो यही बात सबको भी लगती होगी. लेकिन when it became too much कि उनकी तबीयत अब खराब हो रही है, अभी ये जो बाकी दिन तो पूरा दिन वो साथ ही होते हैं, बट जो जो बीच में आधा घंटा का 15 मिनट का ब्रेक हम लोगों को मिलता है या 1 घंटा खाना का ब्रेक मिलता है, उसमें भी ही हार्डली गेट्स 5 मिनट 10 मिनट टू हिमसेल्फ, जब हम लोग उनको पुश करते हैं भैया आप प्लीज अपने रूम में चले जाओ, नहीं तो लोग नहीं छोड़ेंगे. तो वहां वो करने में मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा था लोगों के साथ कि प्लीज थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अब नाउ वी मस्ट गिव हिम सम रेस्ट. तो ये करने के बाद भी मुझे ये था कि कहीं कहीं पे मुझे ऐसा एटीट्यूड लेना पड़ा, बट बावजूद उसके 95% ऑफ द टाइम्स, या इवन मोर आई कैन से दैट आई वाज इन ग्रेटिट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम. श्रेयांश से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. श्रेयांश, मेरे हस्बैंड वहां गए, उन्होंने सेशन अटेंड किया, मेरे को इतने अपॉर्चुनिटीज मिले सिंगिंग करने के, एंकरिंग करने के, मॉडरेटिंग करने के. आई वाज सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मेरे लिए कितना कुछ होता जा रहा है. मतलब एक ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड ये सब बातें रहती है कि मुझे अचीव करना है लाइफ में, बट मैंने एज सच कुछ उनके लिए एफर्ट नहीं किया है कि मुझे, कहाँ मैं कभी सोच सकती थी. व्हेन आई वाज फर्स्ट सेशन जब मैंने श्रेयांश का किया था ऑनलाइन, यू नो नहीं भी तो 10-10, 12-12, 15-15 हजार लोग एवरी डे उनका मॉर्निंग इवनिंग सेशंस अटेंड करते थे. एंड ऐसे ऐसे लोग शेयरिंग करने आते थे हु आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी स्किल्ड अपनी अपनी फील्ड में. कोई हिंदी इतनी अच्छी बोलता है, कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, किसी की अदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, और हर कोई आके ऑफर करता था उनको कि श्रेयांश वट एवर वी कैन डू फॉर यू, अगर आपके लिए कुछ कर पाए तो वी विल बी सो ग्रेटफुल. तो श्रेयांश उनको बोलते थे कि या प्लीज आप लोग उनको अपने मेल कीजिएगा. कोई हीलर्स बहुत अच्छे होते थे. तो मैं सोचती थी कि ना हाउ कैन मेरे अंदर भी ये सब फीलिंग आती थी कि मेरे अंदर में तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं जो उनको ऑफर कर सकूं. या मेरी वॉइस के लिए आई एम अप्रिशिएटेड फॉर माई सिंगिंग एंड फॉर माई रीडिंग एज वेल एज फॉर माई रिकॉर्डिंग ऑडियो बुक्स. बट श्रेयांश की वॉइस तो मेरे से 1000 टाइम्स अच्छी है, तो उनको मैं वॉइस का क्या ऑफर कर पाऊंगी. एनीबडी एल्स आई कैन ऑफर माई वॉइस सर्विसेज, बट श्रेयांश को तो मैं नहीं कर सकती ये वाली चीज. तो बस ये थॉट आता था दिमाग में. तो आई यूज्ड टू फील कि पता नहीं कभी मैं किस तरह से उनके काम आ पाऊं. बट टुडे यू सी आई एम गेटिंग टू डू सो मच फॉर हिम. ये सब कैसे हो गया? मतलब ये मेरे को लगता है मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं उनके साथ खड़े होके
वहां पे जब ये करती हूँ, जब स्टेज पे खड़े होके when he is standing beside me, I would love to share. पता नहीं आप लोग were you all there on the last day? आप लोग थे सब लोग लास्ट डे पे? You all can unmute and tell me please. आप लोग ने लास्ट डे का ये देखा था, क्लोजिंग सेरेमनी जब हुआ था? और you can write in the chat also. So I would like to share one thing यहाँ पे. That is the most precious scene of my life now. Let me just see what is there. Yeah. Are you all able to see? Can somebody say, are you able to see this picture? Vadan, Just 5 Abhinandan, more friends. minutes and we'll Yeah. end. One sec, I'll just turn on the sound. वो कहते हैं मुझे बाहर ढूंढते रहो तो कभी नहीं पाओगे, अपने अंदर देखो मैं तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूं. Thank you. Thank you. That is when he closed his topic, and now I am going for the closing ceremony. Thank you. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you. Thank you. I bow down to each one of you. Thank you. इतने भगवान को से मिलने के लिए थैंक यू. Nobody Thank feels you. like letting you go, Shreyans. Thank you. Thank you so much, Shreyans, and thank you so much, everybody. Today, at the risk of upsetting him, I wanted everybody to rise and give him a standing ovation, which has already been done. So, Thank you. huge round of applause once more for him. बहुत 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 जोरदार तालियां for हमारे प्यारे प्यारे श्रेयांश के लिए. Thank you. Thank you. Thank you. And thanks to Chetna also, right? हमारी चेतना को उच्चतर करने के लिए है, हमारी चेतना जगाने के लिए है ना. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, Shreyans. Thank you. Please sit. Please sit. We'll just invite. Yeah, Chetna, go ahead. Yeah. तो आप सभी को मेरा एक बार फिर से लास्ट टाइम प्यार भरा अभिवादन, Just 5 अभिनंदन more minutes फ्रेंड्स. and we'll end. Yeah. आई होप ये लास्ट 10 दिन आप लोगों ने बहुत मस्ती की होगी, बहुत आनंद पाया होगा, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला होगा, है ना? तो अब हम लोगों ने, जैसे श्रेयांश ने बोला ना, कि अब जब हम सीख लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जवाबदार हो जाते हैं उस सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए. तो आज जब ये वर्कशॉप समापन की ओर है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से ये कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक संपन्न हो सका. मैं खुद को सबसे पहले बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि श्रेयांश ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होस्टिंग करने के लिए. थैंक यू सो मच. Not opportunity. I am blessed Thank that you you are so take that much. responsibility. Thank you. Thank you. Oh God. This has been the most precious, moment of my life. I felt so happy and grateful for this moment. Then when Shreyans is like, I am feeling blessed that you are doing it for me. मैंने कहाँ सोचा था कि मेरे लिए इतना कुछ, I'll be able to do at the retreat, online also, offline also. So it was a wonderful, wonderful. Yeah, Sheila ma'am, the way he bows down, of course, that is what we are, need to learn so much from him, he is an amazing master. And we are blessed to be having him in our life. So that is what I'm saying, but to live gratitude is to touch heaven. जो चीजें जो मेरे माइंड में खाली एक थॉट करके थी, I could never imagine कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो सकता है, वो सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ है. Yeah, Susanna ji, please do read now next onwards.
Yes. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you've built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, Magical Relationships on the second, and Magic Money on the third day. 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Yeah. So now she is telling us, how do we maintain these practices? So up until now, on the regular basis, what we have been doing is writing 10 gratitudes in the morning. That is, count your blessings. And just before going to bed at night, every night, we are doing the magic rock. So these 2 practices are regular, which we are continuing. And yesterday we read, Remember the Magic. That is previous day, whatever good has happened, whatever has brought happy and good feelings within us, what has impacted us in a positive manner and brought happiness in our life. We have to think about that and feel grateful and also write about it. So that is Remember the Magic practice. Now she says, to maintain the base which you have created over the past 20 to 28 days, and to build up, more stronger floors on the base of that, building which you have created. These regular practices need to be done. Usme hai the ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building it through increasing your depth of feeling. तो सबसे पहले अगर हम ये रेगुलर करते रहेंगे तो हम जितना करते रहेंगे हमारी डेप्थ ऑफ फीलिंग बढ़नी चाहिए और बड़ी भी है. Beginning when we all started, it was all very mechanical, but now since you are getting the results, how slowly it is becoming part of your feelings. तो जितना जितना हम करते जाएंगे, जितना जितना हमारी फीलिंग्स और ज्यादा डीप होती जाएंगी, उतना उतना हमें उसको उतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी हमको बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है, तब जाके वो हमारी फीलिंग्स में आ रहा है. बट धीरे धीरे व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर फीलिंग, हमारे ऑटोमेटिकली वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही आने लगे, तो हमें उतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो एज अ गाइड शी सेज 3 days a week ऑफ रिमेंबर द मैजिक करें, या 3 दिन हम ऐसे कर सकते हैं, रिमेंबर द मैजिक जो प्रैक्टिस हम लोगों ने कल पढ़ी थी वो करें, और कंबाइनिंग इट विद 2 other मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ योर चूजिंग should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. 3 दिन ऐसा कर सकते हैं, रिमेंबर द मैजिक, और इसके साथ कोई भी 2 और मैजिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो हम लोगों ने, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, या हमारा किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो कि रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है तो रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिसेस हमने 2 दिन कर ली और 3 दिन ये वाली 3 दिन मैजिकल रिलेशनशिप की प्रैक्टिस कर ली, 3 दिन रिमेंबर द मैजिक कर ली, और एक और मैजिकल प्रैक्टिस हमने कर ली, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए हो, या हमारा मैजिक डस्ट एवरीवन हो, या मैजिक वॉन्ड एवरीवन हो, या हमारा कोई भी और प्रैक्टिस मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हमने कर लिया. तो एटलीस्ट 2 प्रैक्टिसेस हमको डेली करनी है 3 दिन तक, एटलीस्ट हफ्ता में 3 दिन. So for example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. तो 3 दिन में आप ऐसे कर सकते हो कि रिमेंबर द मैजिक कर लिया एक दिन, दूसरे दिन मैजिकल रिलेशनशिप्स कर लिया, और मैजिक मनी थर्ड डे कर लिया. तो एटलीस्ट 3 दिन हमको हफ्ता में ये मिनिमम करना है, अदर देन दोज 2 प्रैक्टिसेस दैट वी आर डूइंग. एंड 4 days अगर हम करते हैं तो क्या करना है, 4 days a week of remember the magic, और 4 दिन हम या तो remember the magic करें along with those 2 practices, या incorporating it with 3 other magical practices of your choosing. अब हमने relationship को
हेल्थ को, मनी को या दूसरे लोगों को हेल्प करना, किसी भी ऐसे 3 और प्रैक्टिसेस को हम ले सकते हैं जो हमारे को विल मेंटेन योर ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेलरेट द मैजिक। अगर हम 4 दिन लेके आएंगे तो ये हमारे मैजिक हमारी लाइफ में और बढ़ाएगा। Now, when we do it for 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. तो उससे हमारी अपनी हैप्पीनेस, अगर अभी तक हम जो 3 दिन सोच रहे थे वो करें, फिर 4 दिन, या अब हम 5 दिन अगर करेंगे उसको हफ्ते में, तब हमारी हमारी खुद की हैप्पीनेस इतनी बढ़ जाएगी। वहां बढ़ जाएगी क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल, हम लोगों ने पढ़ा ना, जब हम ग्रेटिट्यूड में हैं तो कंप्लेन करना या रेजिस्टेंस में रहना इम्पॉसिबल है, डर में रहना इम्पॉसिबल है, गुस्सा करना इम्पॉसिबल है। इफ आई एम इन ग्रेटिट्यूड, जिस इंसान के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ या जिस कंडीशन के लिए या सिचुएशन के लिए कर रही हूँ, उस सिचुएशन के साथ रिलेटेड अगर मेरे को किसी से गुस्सा आ जाता था, किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आता था, अब वो आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज मैंने उसके अंदर अच्छाई ढूंढ के उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया। तो उसके अंदर जो बुराई मुझे दिख रही थी वो बुराई मुझे दिखनी बंद हो जाएगी। आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट द बुराई थिंग, आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द गुड व्हाट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन है। जो भी, अगर पैसा में मेरे को लगता था कि पैसे मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे को 5 लाख चाहिए पर मुझे अभी 2 लाख या 3 लाख ही मिलता है पर मंथ खर्चा करने के लिए, तो मैं पहले जो वो 2 लाख कम था उसको क्रिब करती रहती थी। अब उसको क्रिब नहीं करके जो 3 लाख मुझे मिल रहा है मैं उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मेरे पास क्रिबिंग तो बचेगी नहीं। आई कैन नॉट कंप्लेन, आई विल never go back to the complaining part of the money, which I used to be doing up until now. तो जितना जितना हमारे ग्रेटिट्यूड में आते जाएंगे उतना उतना हमारा हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा, हमारा बीइंग अपना उतना मैजिकल बनता जाएगा कि हम खाली ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में ही रहे और हमें गलतियां और खराबियां और कंप्लेन्स दिखना एकदम बंद हो जाएंगी। एंड इट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड द मैजिक। जब हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारे वाइब्रेशंस चेंज हैं। जैसे ही वाइब्रेशंस हमारे चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, हैप्पी हो गए, हाई लेवल के हो गए, तो हम उसी लेवल की चीजें अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स मैजिक हमारी लाइफ में इंक्रीज हो गया। तो जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे हमारा बीइंग चेंज होता जाएगा, हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते जाएंगे, हमारी कंप्लेन्स, रेजिस्टेंसेस, एंगर, फियर, वरीज कम होते जाएंगे, उतना उतना हमारी लाइफ में मैजिक बढ़ता ही जाएगा। So 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तो अभी तक 5 दिन का बताई थी, अगर हम लोग उसको 6 days करते हैं या 7 days, all 7 days करते हैं, तब तो हम लोग अपनी लाइफ के एल्केमिस्ट बन जाएंगे कि हम जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो सोचने वाले लेवल पे ही कितनी सारी चीजें हो जाती है ना। हमको उतना बैठ के शायद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हमारा बीइंग वैसे बन गया। मुझे कई बार लगता है कि कितनी सारी चीजें मेरी थॉट लेवल पे हो जाती हैं और कितनी सारी चीजें अभी नहीं हुई हैं, तो उनके होने का अभी टाइम शायद नहीं आया, या वो उनका होना मेरे लिए राइट नहीं है। मैंने तो सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, पर वो अगर मेरी लाइफ में नहीं हो रही है तो आई एम स्टिल सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल कि उसके नहीं होने में शायद मेरी भलाई है, इसीलिए इट इज नॉट कमिंग, या उसका अभी होना राइट टाइम नहीं है, इट इज गोइंग टू हैपन सम टाइम इन द फ्यूचर, 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, या 10 साल के बाद, whenever I am open and receptive for whatever comes into my life. So I have that faith in the universe. क्यों आया ये faith? कि जब मेरे को छोटी छोटी बातें ऐसे ही जब मैं सोचती हूँ और हो जाता है, सोचती हूँ और हो जाता है, तो मुझे लगता है ना यूनिवर्स तो मेरे को हर समय सपोर्ट कर रहा है ना। तो इन चीजों में अगर इस मोमेंट पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो या तो टाइम इज नॉट राइट या माई डिमांड इज नॉट राइट। सो ईदर वे आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल कि आप जो मुझे दोगे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर गिविंग मी, राइट? So magic practice recommendations आएगा अभी। Yeah, Susanna जी, please read. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area, several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area.
Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Yeah. Please read. Relationships, magical relationships, magic dust everyone, magically heal your relationships, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Health, magic dust everyone, magic and miracles in health, the magical air that you breathe, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. Remember the magic. Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 4, the magic check, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Career. Words like magic dust everyone, the magic wand. When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice, make all your wishes come true before. Make sure you complete all the steps at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 3. Before your very eyes. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. Okay, ठीक है. So what she is saying now, how to, carry forward these practices for us on a daily, regular basis. She has taught us, different ways. So magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like what are those important areas, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. अब हर एक का जैसे जो मैजिक हम लोगों ने अभी तक उसमें क्रिएट किया है या जो गुडविल हमने क्रिएट कर ली है उसमें उसको मेंटेन करना है तो हम उसकी वही सब प्रैक्टिसेस को हेल्थ को एक दिन कर लिया, एक दिन हमने रिलेशनशिप को कर लिया, एक दिन अपने जॉब या वर्क को कर लिया, एक दिन मनी को कर लिया, ऐसे ही एक दिन किसी और के लिए कर लिया, दूसरों की हैप्पीनेस और अपने हैप्पीनेस के लिए बाय डूइंग मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक डस्ट प्रैक्टिसेस. You could do the specific practices each area once a week. However, if you want to increase the magic, अभी तक हम मेंटेन करने चाह रहे थे तो every day एक प्रैक्टिस करेंगे. But if you want to increase the magic, अभी तक हमने कितना किया 28 days में हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ा ये तो नहीं कर लिया ना कि हम बहुत मैजिकल हमारे अंदर हाथ में मैजिकल वॉन्ड आ गई है या हम इतने स्ट्रांगली मैजिकल मैजिक्स क्रिएट करने वाली हमारे अंदर में पावर आ गई है कि हम जो चाहे जो सोचे वो कर लेते हैं. वैसा नहीं है अभी तो हम लोगों ने जस्ट अबाउट मैजिक की फीलिंग को, मैजिक की पावर को समझना शुरू किया है. तो अगर उस लेवल पे हम उतना समझ के मेंटेन करने के लिए खुश है तो हम ये क्या करेंगे, दिन में एवरी डे एक प्रैक्टिस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दोज 2 प्रैक्टिसेस व्हिच वी आर डूइंग इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. लेकिन if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. अब अगर सपोजिंग आपकी रिलेशनशिप में आपको अगर चैलेंज है उसको ठीक करना है तब भी, या चैलेंजेस नहीं है एक नॉर्मल लेवल पे चल रही है उसमें और मैजिक लेके आना है, उसको और खूबसूरत बनाना है, तब भी
उस रिलेशनशिप में अब हम सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं उसको करेंगे. नाउ वी विल डू इट सेवरल टाइम्स अ वीक और मे बी 7 times every day. Yes, 7 times a week. That means on a daily basis every day. And if you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. और अगर कोई हेल्थ का चैलेंज है तो वो तो हमको डेली करना ही है, एटलीस्ट वंस एवरी डे, इफ नॉट मल्टीपल टाइम्स. दैट मीन्स शी इज रिकमेंडिंग कि जितना ज्यादा अगर मल्टीपल टाइम्स इन अ डे आप करोगे तो उतनी जल्दी आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी आएगा. बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मिनिमम वंस अ डे तो आपको करना ही पड़ेगा. देन यू विल बी सीइंग द रिजल्ट्स इन योर health improving. So the following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. तो अभी हम लोगों को जो बता रही है, हम लोगों को कम से कम 3 weeks हमको करना है. रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है तो हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो हम लोगों ने 28 डेज में पढ़ी है. मैजिकल रिलेशनशिप्स करना पड़ेगा, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स करना पड़ेगा और मैजिक वॉन्ड करना पड़ेगा. मैजिक वॉन्ड में क्या है, मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उन पीपल, ऐसे लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं और उनकी पिक्चर्स हमारे पास हैं, तो उनकी पिक्चर्स देख के या डायरेक्टली उनकी इमेजिनेशन करके हम उनके ऊपर मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं. ऐसे लोगों को जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमको किसी से और से पता चला, जिनको हमने कभी देखा नहीं है ना, कौन हो सकते हैं ऐसे लोग. सपोजिंग वॉर एरिया हो रहा है तो वहां पे लोगों को मैं किसी को थोड़ी ना जानती हूँ, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, या कोई एक भी इंसान के लिए अगर मुझे पता चलता है दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, मैंने किसी का कन्वर्सेशन सुन लिया या कोई मेरी फ्रेंड ही आके मुझे बताती कि उसकी दूसरी फ्रेंड का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कभी नहीं देखा, मैंने ना उसकी फ्रेंड से मिली हूँ ना उनके बच्चे से मिली हूँ, लेकिन मैं उसको मैजिक वॉन्ड करके उसको अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ. या वॉर एरिया में इतने सारे लोग अटके हुए हैं तो उनको मैं मैजिक वॉन्ड करके अपनी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, अपना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भेजती हूँ कि उनकी लाइफ में अच्छाइयाँ आ पाए, उनकी लाइफ में चेंजेस आ पाए. तो विदाउट फोटोग्राफ्स हम ऐसे लोगों के लिए कर सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बट हमको जिनके बारे में सुनाई पड़ा. और हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, मैजिक मिरर कर सकते हैं, रिमेंबर द मैजिक कर सकते हैं. हेल्थ के लिए भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बताया, मैजिकल हेल्थ बताया, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ बताया, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ एंड मैजिक वॉन्ड. हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या मनी हो, हर जगह पे यू विल सी मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक डस्ट. हर जगह पे इन्होंने बोला हुआ है कि ये आपको करना है. अब मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट अगर मैंने जैसे करियर है, करियर में भी यही बोल रही है, मैजिक डस्ट एवरीवन भी करना है, अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रैक्टिसेस दैट वी आर सपोज टू बी डूइंग फॉर एनहांसिंग आवर करियर. एंड ये आपका मैजिक वॉन्ड भी करना है. सी मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक डस्ट दोनों बोल रही है हर जगह पे, चाहे हमारी वो डिजायर्स को पूरा करने का है, मैजिक वॉन्ड मैजिक डस्ट हमको हर जगह करना ही करना है. तो इसका मतलब ये है कि मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड से हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं. अपने लिए तो हम करते ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे अपने लिए थी. अब जब हम मैजिक डस्ट करते हैं, मैजिक वॉन्ड करते हैं, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला ना, योर डिजायर्स. इफ यू हैवंट डन द प्रैक्टिस ऑफ मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. एक जगह पे इन्होंने बोला है कि हम लोग जो blessings कर रहे हैं ना, yeah, when using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. दूसरों को, अब जब हम मैजिक वॉन्ड कर रहे हैं या मैजिक डस्ट कर रहे हैं, मैजिक वॉन्ड हम दूसरों, हमने ये किया था ना, किसी की लाइफ में अगर रिलेशनशिप से लेकर या मनी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैलेंज है तो उनकी फोटो लेके हमने उनको मैजिक वॉन्ड किया था कि सो दैट उनकी वो लाइफ जो स्ट्रगल है वो चेंज होके उनकी लाइफ में वो चेंज ये आ जाए, बदलाव आ जाए, उनका ये ट्रांसफॉर्म हो जाए वो परिस्थिति उनके बेटरमेंट के लिए. तो जब हम ये मैजिक वॉन्ड कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए, चाहे वो अगर मैं अपनी हेल्थ केयर के लिए कर रही हूँ तो दूसरों की हेल्थ के लिए, या दूसरे को कोई भी तरह का चैलेंज है उसको मैं मैजिक वॉन्ड करती हूँ, तो मैं दूसरों की ब्लेसिंग दे रही हूँ. और जितना जितना हम दूसरे को देंगे वो रिटर्न में ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगा. एक तो मैं जो खुद अपने लिए कर रही हूँ वो तो मैं अपने लिए कर ही रही हूँ, लेकिन जब दूसरे को दे रही हूँ तो वो मैग्नीफाई होके मेरे पास आता है, तो मुझे डबल मिलता है ना. तो अब ये, लेकिन इस थॉट के साथ हम नहीं करते कि मैं इसलिए करूं क्योंकि वो रिटर्न होके मेरे पास आएगा, उसका फायदा मुझे मिलेगा. नो, मेरा जेन्युइनली अंदर से ऐसा बीइंग हो जाए कि जो तकलीफ, जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ, मुझे उसका जो दर्द होता है, उसकी जो तकलीफ होती है, मुझे सबका दर्द समझ में आए, मेरे अंदर में उसको फीलिंग में आ जाए कि दूसरे को भी किसी के तरह का कोई भी अगर चैलेंज है, ब्रेकडाउन है, तो कितनी तकलीफ होती होगी.
तो उस तकलीफ से निकालने की ये जेन्युइन भावना मेरे अंदर आए, इसलिए मैं उनको मैजिक वॉन्ड कर रही हूँ, इसीलिए मैं मैजिक डस्ट कर रही हूँ, चाहे वो मेरा जाना हुआ कोई इंसान है या अनजाना इंसान है, जो भी है। तो जितना जितना हम दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे डिजायर अपना मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक डस्ट के थ्रू, उतना उतना हमारी लाइफ और ज्यादा मैजिकल अपने आप होती जाएगी। सो दीज आर डिफरेंट वेज शी हैज टॉट कि मैजिक योर डिजायर्स को अगर हमको करना है तो उसके लिए भी हमको मैजिक डस्ट एवरीवन करना है, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू करना है, बिफोर योर वेरी आइज करना है, मैजिक वॉन्ड करना है, मैजिक मिरर करना है, एंड रिमेंबर द मैजिक करना है। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस हमको करनी है, तब हमारी वो जाए हमारे डिजायर्स भी फुलफिल होंगे। So this chapter is a very important one to guide us further in our further journey. क्योंकि जैसे अगर हमने इसको रोका, हमने कहा हम तो अब समझ गए भैया, हमको मैजिक का पता चल गया, हमको ग्रेटिट्यूड का पता चल गया, ये बहुत पावरफुल है, और हम बीच बीच में कर लेंगे, वो मॉर्निंग की और रात की तो हम कर ही रहे हैं ना, तो बीच बीच में जब जब आएगा मौका तब कर लेंगे ऐसे, तो वो हमारी आदत में नहीं होगा। और जब तक हमारी आदत में नहीं होगा तब तक लाइफ में चीजें नहीं बदलेंगी। सिर्फ मॉर्निंग का करना, रात का करना, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, but the way you want to transform your life magically and miraculously, that will only happen when you are very, very diligent and regular, at least 3 to 4 or 5 practices every day apart from those 2 practices that we are doing. है ना? So now she says magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life. That of course we are doing by continuing to keep your magic rock by your bedside. अब ये magic rock की practice again was not only meant for 28 days जो हम लोगों ने complete किए हैं. It has to continue now for the rest of our life. And using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. इस मैजिक रॉक को हम उस रिमाइंडर की तरह रखेंगे कि हमें ध्यान रहे कि हमें आज के दिन में जो भी अच्छा हुआ था उसमें एक तो बेस्ट चूज करने के लिए हमको पूरी की पूरी सिचुएशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उनको सबको सोचना पड़ेगा, उनके लिए उनको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उनके लिए ध्यान करना पड़ेगा, उनको रिकलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके। और जितनी बार हम हर चीज के बारे में सोचेंगे कि हाँ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, उतनी बार मेरे अपने इमोशंस, मेरे फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, है ना। अगर मैंने 15 चीजों के लिए सोच लिया, 20 चीजों के लिए सोचा, तो उतनी देर मैंने वो टाइम डिवोट किया है मेरे इमोशंस को चेंज करने के लिए। मेरे इमोशंस ट्रांसफॉर्म हुए हैं जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। और सोने से पहले जैसे ही मैं अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करती हूँ, दैट टेक्स अप अ मैजिकल प्रैक्टिस। क्योंकि वही अभी जैसे ही मैं सो जाऊंगी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को बार बार रिपीट करके इतना रिपीट करेगा, इतना रिपीट करेगा, इसलिए रिपीट कर पाएगा बहुत फ्लॉ ये विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी सो गया, तो अभी खाली सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में एंटायर पावर है। पूरे दिन में 5% पावर इज स्टिल टेकन बाय द कॉन्शियस माइंड। वो इंटरफेयर भी करता है, डाउट्स भी क्रिएट करता है, कुछ और भी ये कर सकता है, हमारे अंदर में हिंडरेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर थोड़ी डाइल्यूटेड रहती है, बट रात के और सोने के टाइम उसकी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और उसको वो 8 घंटे का 10 घंटे का टाइम मिलता है जब वो इतनी पावर को यूटिलाइज करके उन चीजों को रिपीट करता है जिनको लेके हम सोए, जिन भावनाओं को लेके हम सोए थे। तो जैसे जैसे वो उन भावनाओं को रिपीट करता जाता है तो हमारा बीइंग बदलता जाता है, और हमारा जैसे ही बीइंग बदलेगा हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली मिराक्युलसली बदल जाएगी, राइट। So yeah, please read this one also, your magic dust. Susanna ji, you please read once. Yeah. Yes, thank you. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family Where is him member and her? or loved one. Where is him and her? No, you skipped a few sentences. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. Yeah, you skipped a few lines, I believe. Yeah. Yes. Okay. Sorry. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go, and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance
that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yeah. So magic dust can be done on anything and everything. Whether there is a challenge in some situations and certain, if some person is not in a right mood, or there is a, supposing there is a breakdown in any of our gadgets, वहां पे भी हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारे लैपटॉप है, हमारे ovens हैं, गैस स्टोव है, या if somebody is not in a right mood, या somebody is getting upset about something, and why are we doing this? हमको ये समझ में आ रहा कि the kind of peace and the calm and the joy that I have achieved and received through the practice of this, gratitude, I wish this, state of calm and joy should be a part of everyone's being. तो इसके लिए with that kind of feeling, I magic dust on everybody, जिसको जिसके भी लाइफ में कोई भी तरह का चैलेंज आ रहा है, किसी का कोई प्लांट सूख रहा है तो उसके ऊपर कर दिया, या कहीं पे बहुत ज्यादा सपोजिंग बारिश आ रही है तो हम बारिश के ऊपर कर दिया मैजिक डस्ट की, मे एवरीबडी स्टे हैप्पी एंड सेफ। या बहुत धूप है, लोगों को धूप से परेशानी हो रही तो हम धूप के लिए भी मैजिक डस्ट कर दिया, या लोगों के लिए डस्ट कर दिया कि उनको धूप इतनी हर्ट नहीं कर रही है, बिकॉज मैं अपने आप को यही बना, मैं कंप्लेन तो करना ही नहीं, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, नो वे, इट्स नॉट माई पार्ट ऑफ वोकैबुलरी एनी डे नाउ, बिल्कुल नहीं। मैं उसके बेनिफिट्स ही सोचूंगी कि यार मेरे को इतने अच्छे आम खाने को मिलते हैं, मेरे को इतने अच्छे मेलन्स खाने को मिलते हैं, बट हाँ साथ साथ मैं ये करती हूँ कि मेरे को इतना जस्ट कीप मी हैप्पी एंड प्रोटेक्टेड कि मुझे इसकी हीट उतनी लगे नहीं, और नहीं लगती है बिकॉज आई एम इन ग्रेटिट्यूड ना, मुझे लगता ही नहीं है। अब यहाँ पे कैलकाटा में तो कितने दिनों से बारिशें ही हुई जा रही हैं, तो है ही नहीं उतनी हीट यहाँ पे, नहीं तो दिस टाइम इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंटेंसली हॉट, तो नहीं है वो चीजें। कितनी चीजें आप अपने थॉट प्रोसेस से बदल सकते हो, तो अपना मैजिक डस्ट करके हम लोग ऐसे कितने लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और हमारा जैसे जैसे बीइंग चेंज हो रहा है, जैसे आई सेड ना, सो मेनी पीपल स्टॉप्ड मी एंड सेड कि मैम वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन योर विसिनिटी, आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप जब थैंक यू बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पर्सनैलिटी ने, मेरे अंदर जो बीइंग में चेंज आया, वो किसी और को भी तो इम्पैक्ट कर रहा है ना, उसके अंदर भी तो ये मोटिवेशन लेके आ रहा है कि इसके अंदर में क्या है ऐसा जो कि मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो चेंज आ सकता है। सुनो, उसके बाद अगर मेरा वो ग्रेटिट्यूड वाला वहां पे अगर ये हो जाएगा एक बार, जब भी होगा, ऑफ कोर्स इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा, तो जब भी होगा तो उससे जितने लोग अभी जो इस चीज से, इस बात से अनजान है, जिनको एकदम नहीं आइडिया कि ग्रेटिट्यूड की पावर कितनी स्ट्रांग है, उससे हम लोग अपनी लाइफ में कितना चेंज ला सकते हैं, तो आई एम देयर एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो, लिविंग डे बाय डे, कि मेरे बीइंग से पता चल रहा है कि ओके यार, दिस इज व्हाट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। उसके अंदर से मेरे को अगर ये कुछ समझ में आता है तो उसकी पावर यही है कि वो थैंक यू जो बोलती है, उस थैंक यू की वजह से उसकी पर्सनैलिटी में ये अच्छापन दिख रहा है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ, इट इज जस्ट द फैक्ट कि ये हो रहा है अब मेरी लाइफ में, मुझे ये सब चीजें दिख रही हैं। द सेम थिंग विच आई यूज्ड टू सी इन श्रेयांश, जो उनको देख के श्रेयांश को, वरुण को, या उनकी फैमिली को, द काइंड ऑफ रिलेशंस दे हैड, माय गॉड, द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दे हैव, द काइंड ऑफ लव, affection and care they have, each one of them, एक दूसरे के लिए। I mean, like I used to die कि wow, what a wonderful family, what a wonderful ये। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये फैमिली में, I used to think कि श्रेयांश is blessed यार, इतनी अच्छी फैमिली में तो कोई भी इतना अच्छा होके रह सकता है ना। But then I realized and came to know, no, it is Shreyans's effort only जो इतनी अच्छी फैमिली बन पाई है। उसने एफर्ट किया है, फैमिली वैसे ही थी नॉर्मली जैसे इंडियन फैमिलीज होती हैं, टेंशन भी है, वरीज भी हैं, बिट्रेयल्स भी हैं, सब कुछ था, बट उन सबको ठीक करके इस लेवल पे लेके आना कि अभी सब लोग उनको भगवान करके पूछते हैं और उनकी बात के बिना कोई हिलता ही नहीं है। एंड ही इज ऑल्सो लाइक वरुण इज 11 years younger to him, उनके बच्चे उनको दे आर लाइक ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर हिम। इतना प्यार, माय गॉड, मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या क्या तो है सीखने के लिए श्रेयांश से, एंडलेस लर्निंग फ्रॉम हिम, एंडलेस लर्निंग फ्रॉम हिम। तो उनको देख के जो मेरे अंदर में जो जो चेंजेस आ पाए हैं कि अब वो दूसरों को भी दिखने लगे, तो आई फील ब्लेस्ड कि ना कुछ तो इनकॉर्पोरेट कर पाई मैं अपनी लाइफ में बाय सीइंग हिम। माय गोइंग देयर रेगुलरली हैज नॉट गॉन वेस्टेड, आई एम learning and achieving and acquiring things from his personality, from his day-to-day living, which was my ultimate aim is by going there regularly। मैं यही सीखना चाहती हूँ कि वो कैसे है, इस तरह का इंसान कैसे बन गया है, what is he doing, इतना किस तरह से कर पाता है।
So you can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. किसी को आप बीमार देखते हो, किसी को परेशान देख रहे हो, चाहे वो हमारा जाना हुआ है, नहीं जाना हुआ है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। रास्ते में आते जाते हुए ना कोई ऐसे पेट बेचारा दिख जाता है जिनका जिनको शायद चोट लगी हुई है, या किसी को किसी चीज की जरूरत है, भूख में भूखा घूम रहा है, या ऐसे कोई बैगर है, तो सबको हम लोग वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। And you can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children. किसी का भी babies दिख जाता है, चाहे वो हम लोगों को birds के दिखते हैं, animals के दिखते हैं, अपने humans के दिखते हैं, सबके ऊपर. Over your plants or garden, your food and drink, your computer or your mail. Mail को खोलने से पहले कि mails are all going to be bringing only happy news for me and happy requirement for me and from me. योर वॉलेट, आप वॉलेट खोलो तब उसको ब्लेस करो, गाड़ी में बैठो तो ब्लेस करो, रोड पे गाड़ी चल रही तो रोड को ब्लेस करो, रोड को बनाने वालों को ब्लेस करो, आसपास जो पार्क दिख जाते हैं उनको ब्लेस करो, इतने जो ट्रीज खड़े हुए हैं उनको ब्लेस करते हुए जाएं। जाते हुए रास्ते में कितनी शॉप्स दिखती हैं, शॉप ओनर्स हैं यहाँ पे, उनपे काम करने वाले नॉन स्टॉप बेचारे काम कर रहे होते, तो उनको ब्लेस करो कि उनको रिलैक्सेशन मिले, उनकी लाइफ में बहुत अच्छाइयाँ आए, उनकी लाइफ में बहुत खुशियां आए, कि उनको किसी चीज की कमी नहीं रहे। So endless uses of magic dust we can do. Your phone, before you take or make a phone call, अपनी फोन लेने से पहले या फोन किसी का आने से उठाने से पहले, ये अभी भी मेरी आदत में नहीं है। आई स्टिल रियली नीड टू, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी नहीं ध्यान में आती, ये मैजिक डस्ट करने के लिए अभी मैं अब थोड़ा थोड़ा मेरी आदत में आ रहा है कि मैं रास्ते में देखते हुए इधर उधर लोगों को बस थैंक यू करते करते, ब्लेसिंग करते करते चली जाती हूँ। चाहे वो मुझे कोई पेड़ दिख जाता है, कोई रास्ते का रोड दिख जाता है, रास्ते की डिवाइडर की रेलिंग्स दिख जाती हैं, या ट्रैफिक लाइट्स दिख जाता है, जहां भी मेरा ध्यान जाता है मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट एंड थैंक यू। चाहे वो मैजिक डस्ट की फीलिंग नहीं लेके भी करूं तो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू आप हो, आपका लाइफ मेरी लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन है, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग ना, ट्रैफिक लाइट्स भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोज डिवाइडर इन द रोड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग बाय मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन ट्रैफिक ऑन द रोड। तो हर चीज के लिए जितना हो सकता है उतने डिटेल में मैं नहीं भी सोचूं तो एटलीस्ट थैंक यू आई एम इन दैट जोन। बट कई चीजें अभी भी हैं, जैसे फोन कॉल पर मुझे एकदम नहीं ध्यान आता, तुरंत उठ जाता है, एंड बट हाँ ये है, वो कभी कभी जैसे कॉल सेंटर से पहले आता था तो मैं पहले चिढ़ के बैंग कर देती थी, बट नाउ अभी आई डोंट डू दैट। आई सेड ओके, इफ आई रिक्वायर योर हेल्प आई विल कॉल यू बैक। इतनी डिसेंसी आ गई, थैंक यू करके एटलीस्ट वो करना। बट बिफोर अटेंडिंग द कॉल अभी तक नहीं आया है, विच आई रियली नीड टू वर्क ऑन, है ना। और ओवर एनी सर्कमस्टेंस दैट यू वांट टू इम्प्रूव, द मैनी एप्लीकेशंस ऑफ मैजिक डस्ट आर लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन। तो अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, इसके बियॉन्ड आप लोगों को क्या समझ में आता है, यू ऑल कैन ट्राई वेरियस वेज एंड मे बी यू शेयर कि आप लोगों ने मैजिक डस्ट और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस, ऐसे ऐसे कहाँ पे आपने करना शुरू किया, जो कि हम शायद सब लोगों को ध्यान में नहीं होगा। So for the time being, we will stop it today here. Okay. So rest of the chapter we will read tomorrow. Okay. Okay. So we are now nearly finishing. Maybe tomorrow, max to max day after tomorrow, we will be over. And uske baad I'm thinking either I do power of your subconscious mind, what is that? Mirror work. Either of the thing we can start with, but after a few days gap. We will be doing that, right? Is that okay with you all? What is your suggestion? किसको आप लोगों को क्या करना है? You all can unmute yourself and let me know. किसका क्या करने का मन है? कौन सा बुक करने चाहोगे? Power of our subconscious mind or mirror work? Thank you, Chetna ji. Yes, Prabha ji. I would like to share few things. For you, I want to tell something. Just now you mentioned your experience, you're telling कि श्याम जी के साथ जो कि same feeling I have कि thank you so much to awaken our Chetna within us. अरे ये वाला सेंटेंस मुझे इतना बार सुनने मिलता है, माय गॉड। लास्ट में जो उसी टाइम इंस्टेंटली this only came मेरे में आया, तो मैंने तब से this is really true fact which I am feeling. Oh God, thank you so much. But I am really not worth it. श्रेयांश तो बार बार बोलते हैं और वो मजाक में भी बोलते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, तो मेरे को तो I enjoy every word that comes from श्रेयांश, so I love everything.
So so सारे के सारे उनकी बातें सुन के सारे participants, my God, they keep telling me. और इस बार तो उन्होंने एक नया सेशन भी लिया, about consciousness. तो कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने पूरा एक बहुत लेंथी ये किया था. बट कॉन्शियसनेस इज व्हाट? चेतना, हिंदी में. तो उसका टॉपिक था चेतना का विज्ञान. ओ माय गॉड, एवरीबॉडी टुडे आज हमको चेतना के बारे में पता चलेगा कि चेतना ऐसे कैसे बन गई है, चेतना ने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, ये वो. एंड टुडे सेशन यू शुड बी टेकिंग चेतना मींस वेरियस थिंग्स. एंड मैं और श्रेयांश हंसते जा रहे कि या श्रेयांश इज आल्सो सेइंग या चेतना दे आर राइट, यू शुड बी गोइंग एंड डूइंग इट. एंड देन लास्ट में जब मैं वापस निकल आ रही हूँ, देन वन पर्सन इज टेलिंग ओके अब चेतना चली गई, अब हम लोग सब नॉर्मल हो जाएंगे. अभी तक हम लोग अब चेतना चली गई, अब हम लोगों को नॉर्मल होके जीने का मौका मिल गया. मैंने कहा थैंक गॉड. तो नॉर्मल होते होते भी अगेन हम लोग जब भी मिलते हैं तो इवन आई एम फीलिंग कि I saw you when I had been with you like since 4 years. I think this is the 4 years. Yes. Yeah. So every like where you started one with magic first. Yeah. Then after I don't know, you went for Vipassana and or you started Mirror. So Yeah. you are totally different. After that 6-month gap or whatever, Yeah. I saw you were different. Yeah. Means very you raise your whatever. Your personality development, whatever you say. I notice, and even I follow that. I'm trying to be like, every step we are going ahead. Right. Then after that, you came after a long gap. I think 1 year or 2 years. No, you Yes. started this meditations. Yeah. That was totally different. Yes, yes, yes. Again, I found change in you, and even we are trying. We feel in ourselves also the change, development, whatever. Yeah. And every day is a new learning experience we get, and we again, and this time again after this magic, it is really Yeah. tool. Yeah. Yeah, just now we are reading. Yeah. So again after 10 days, I think you No, this yeah. last So 10 2 weeks. 2 weeks, huh? Yeah. Well, then I saw you again. I found some difference between Wow. you. Like, अच्छा एक तेज आता है ना चेहरे पे. Yeah. Expression we can. So it's very nice, and I would like to continue with you. Like power of subconscious mind. You are. I really would like to do with you. Yes. I have the book this, Yeah, but yeah. when the way you explain, then more clarity come. Yeah, yeah. So let's do power of subconscious ही कर लेंगे फिर हम would लोग. like- I think many people have written on chat that they want power of subconscious mind. But you will keep this time only 3 o'clock or? Let me see. I will not be doing it immediately, because these are last few days of my tenure with as a secretary of Rotarians. So last few days are going to be a little tight for me. काम वाम करना भी रहेगा. तो वो एक बार ओवर हो जाता, maybe by 3rd week of this month it will all be over, or maybe by end of this month. So around once that gets over, within a couple of days or 2-3 days, I will start, with that new book. So I just don't want to take too much of work pressure on this thing. So I have so much to do. My riyaz and all was all compromised this entire year. I now want to go bang into it, with a big bang, going back to my riyaz, going back to enhancing my vocal qualities and all. बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत challenges बाकी हैं. Singing में भी बहुत improvisation की जरूरत है. So now these two are going to be my focuses. Your song you put in, I think, Facebook long back. Even I am in singing. Means bhajan. All the singing, but old songs. My favorite song. Yesterday you put one kya Dil Ne Fir Yaad Kiya, one of my favorite song. Yeah. But Star I have to upload in my download, so I will see. And then you sang one song. You kya मौसम की. Yeah. Oh, touch me. Then I started. I was also learning this song. Yeah. Blank. That's a tough song. That's a very tough song. उसमें different and हैं. I was practicing 2 months. I was doing this song. That's a very tough. But not Okay, like you. Like with I have always go towards the tough songs, so even when I was same in the thing. retreat, I take Lata Mangeshkar songs or all this because I am not learning. My teacher comes. Then I says I catch this Lata Mangeshkar song classical. This way we can practice our throat and voice modulation, everything. Yeah.
नहीं उसमें स्केल वेरिएशंस बहुत हैं. There are Yeah, lot. scale variations, yes. एक scale It really variation. helps. Yes. Very Anyway, very nice session we had. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We still have one more chapter, no, Chetna ji? Yeah, that we will complete either tomorrow or maximum by tomorrow or Okay. Just don't want to leave you. even I don't want to leave. Hook on to We us all, every we all. day, even for 10 minutes. We all. Yeah, I don't know, some past births. Ever since I've met you, I've been so attached. I know. We are all part of soul family, है ना? हम लोग सब मिले हुए soul family से. So that is Thank how you so much for Correct. being there for me. we are all there for everyone. We are all there for helping each other. That is why we are connected, na? Otherwise, not everybody. Now, see, despite so many of them, like only a few come and sit together and, listen to each other. So that makes all the difference. कि कौन किसके साथ connected है, ऐसे ही, है ना? Okay. ठीक है? Thank you so much. Thank you, Sheila ma'am. Thank you so much. Chaliye, then tomorrow again we will meet at the same time. See you all tomorrow. Thank you.